এখন সকাল 10টা বাজে। আজ বৃহস্পতিবার 6ই মার্চ। এখন আমরা চলে এসেছি ঔরঙ্গাবাদ জেলার দৌলতাবাদের কাছে ভেরুল গ্রামে। এই ভেরুল গ্রামে আছে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ইলোরা গুহা। এই ইলোরা গুহায় রয়েছে বৌদ্ধ, হিন্দু, জৈন ধর্মের ভাস্কর্য, কারুকার্য, যা ভারতের প্রাচীন সভ্যতার এক অতুলনীয় বিস্ময়। রাস্তার ডান দিকের পর্বতমালাটি হল 1600 কিলোমিটারের পশ্চিমঘাট পর্বতমালা, যা গুজরাটের তাপ্তি নদী থেকে শুরু হয়ে তামিলনাড়ুর কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিস্তৃত। নমস্কার, সকল দর্শক বন্ধুদের সুপ্রভাতে জানাই এবং শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে শুরু করি আজকের ভিডিও। আপনারা জানেন আমরা কিছুক্ষণ আগে দৌলতাবাদে দুর্গে গিয়েছিলাম। দৌলতাবাদ দুর্গ প্রতিদিন সকাল 6টা থেকে সন্ধ্যে 6টা পর্যন্ত খোলা থাকে। দৌলতাবাদ দুর্গ থেকে চলে এসেছিলাম দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের শেষ জ্যোতির্লিঙ্গ ঘৃষ্ণেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ দেখবার জন্য। এটা দূরত্ব মাত্র 14 কিলোমিটার। আমাদের বাসে সময় লাগলো 19 মিনিট। আর এই ভেরুল গ্রামটা আসতে হলে ঔরঙ্গাবাদ থেকে 30 কিলোমিটার দূরত্ব, আর এখান থেকে ইলোরার দূরত্ব মাত্র 1 কিলোমিটার। ঔরঙ্গাবাদ বা সম্ভাজিনগর থেকে এই ইলোরার দূরত্ব 30 কিলোমিটার এবং সময় নেবে গাড়িতে 45 মিনিট। এইমাত্র আমরা ইলোরাতে পৌঁছে গেলাম। কুন্ডু স্পেশালের আমাদের সমস্ত সহযাত্রী বন্ধুরা এখানে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাদের সামনেই রয়েছে এখানকার টিকিট কাউন্টার। আমাদের ঘড়িতে এখন 11টা 40 বাজে। আমরা এসে গেছি ইলোরাতে। ইলোরা এখানে টিকিট কাউন্টার আছে, এখানে টিকিট কাটছে আমাদের ম্যানেজার সাহেবরা। এখানে 40 টাকা টিকিট এবং বিদেশিদের জন্য 600 টাকা, আর 15 বছরের মধ্যে সবার ফ্রি। এখানে মোট 34টা গুহা আছে। এই 34টা গুহাই সবকটাই জগৎ বিখ্যাত। এখানে এই ইলোরাটাও ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসাবে গণ্য হয়। অজন্তা যেমন চিত্র গুহার জন্য বিখ্যাত, এখানে এই ইলোরা বিখ্যাত হলো তার অসাধারণ স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যের জন্য। আমরা এখানে কৈলাস টেম্পল দেখব এই ইলোরা গুহাতে, যেটা একটা বড় পাথর দিয়ে তৈরি হয়েছে। অতীতে এই ইলোরাতে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন এই 3 ধর্মের লোক এখানে একসঙ্গে পূজা অর্চনা করত এবং 3 ধর্মের 3 রকমের এখানে গুহা স্থাপত্য দেখতে পাবেন। এখানে 1 থেকে 12টি গুহা হলো বৌদ্ধ গুহা, 13 থেকে 29 নাম্বার 13 থেকে 29 গুহাগুলো হলো হিন্দু গুহা এবং 30 থেকে 34 হলো জৈন গুহা। এইভাবে 34টা গুহা এখানে আছে। বৌদ্ধ, হিন্দু, জৈন এই 3 ধর্মের সংমিশ্রণে এখানে গুহাগুলো আছে। আমরা ঔরঙ্গাবাদে এসে প্রথম দিনই আমরা বিকেলবেলায় 5.5 কিলোমিটার দূরের বিবিকা মকবরা দেখে নিই। তারপর দ্বিতীয় দিন সকালবেলা 100 কিলোমিটার দূরের অজন্তায় যাই। আজ তৃতীয় দিন সকালবেলা হোটেল ক্লিক থেকে চেক আউট করে বেরিয়ে প্রথমেই 17 কিলোমিটার দূরের দৌলতাবাদ ফোর্ট দেখে নিই। এরপর 14 কিলোমিটার দূরের ভেরুল গ্রামে ঘৃষ্ণেশ্বর মন্দিরে যাই, যা আমার আগের ভিডিওগুলোতে দেখানো হয়েছে। এখন ঘৃষ্ণেশ্বর মন্দির থেকে 1 কিলোমিটার দূরের এই ইলোরাতে এসছি। আজকের ভিডিওর বিষয়বস্তু হলো ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ইলোরা। এখান থেকে 2 কিলোমিটার দূরের 17 থেকে 34 এই কেপগুলোতে যাওয়ার জন্য এই গাড়িগুলো রয়েছে। এই পিকআপ ভ্যানগুলোর ভাড়া আসা যাওয়া 30 টাকা। আমাদের সামনেই রয়েছে 16 নম্বর গুহা, এটাই কৈলাস মন্দির। এই কৈলাস গুহাটা বড় একটা পাথর থেকে তৈরি করা হয়েছে। এই সমস্ত এই পশ্চিমঘাট পর্বতমালার সমস্ত এগুলো মজবুত পুরানো ব্যাসল্ট শিলা, সেই জন্য এগুলো এখনো অক্ষত আছে। এখন এগুলো সমস্ত ভারত সরকারের আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার তত্ত্বাবধানে আছে এবং ইউনেস্কো একে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসাবে অলরেডি ঘোষণা করে দিয়েছে। এর গুরুত্ব এখন অপরিসীম। এবার আমরা এখানকার গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভড গাইড নাসির ভাইয়ের কাছ থেকে ইলোরা সম্পর্কে কিছু কথা জেনে নেব। तो ये एलोरा गुफा 3 किलोमीटर में स्कैटर है ओरिजिन टू एंड। तो टोटल गुफा है 34 गुफा है।
और जो किंग था राष्ट्रकूटा किंगडम, इन्होंने इनको पेट्रोनाइज किया है, फंडिंग किया है कार्विंग करने के लिए केव्स को। तो उसी तरह से हम देखते हैं इनका टाइम पीरियड थोड़ा सा अलग है। जैसे ही अजंता का गुफा का काम ख़त्म होने आ रहा था, 6th सेंचुरी में अजंता का काम ख़त्म हुआ, उससे पहले 5th सेंचुरी में कुछ आर्टिस्ट अजंता से यहाँ पर आए और यहाँ पर काम करना शुरू किया है। तो जो टोटल गुफा में से गुफा नंबर 1 से 12 तक जो है ये बुद्धिस्ट गुफा है। इनका टाइम पीरियड है 5वीं सदी से लेके 750 AD तक। और गुफा नंबर जो है 13 से 29, इनका टाइम पीरियड है 750 से लेके 950। और गुफा नंबर 30 to 34 जैन है, इनका टाइम पीरियड है 950 to 1050। इसी पूरे भारत में टोटल गुफा है 2800 पूरे इंडिया में। उसमें से सबसे ज़्यादा गुफा महाराष्ट्र में। का कारण है ये जो रॉक है, पत्थर है, ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, मीडियम रॉक क्वालिटी है और ये सूटेबल होता है कार्विंग करने के लिए। ये जो गुफा होती थी, ये हाल्टिंग प्लेस होती थी ट्रेडर, ट्रैवलर, मॉन्क्स के लिए। जब ये भीतर में रहेंगे इनका मन नहीं लगेगा, इनको एंटरटेन करना ज़रूरी है। इसलिए एंटरटेन करने के लिए गुफा के अंदर में मूर्तियाँ बनाई और दूसरा पेंटिंग किया। तो एक माध्यम होता था इन लोगों को अपने रिलीजन के बारे में समझाना। तो उस टाइम में देखिए माउथ टू माउथ एजुकेशन होता था, मगर विजुलाइज करने के लिए भगवान ऐसे होते हैं, बुद्धा ऐसे होते हैं, वो समझाने के लिए इन्होंने मूर्ति और स्कल्पचर्स बनाए। एक शिक्षण का एक माध्यम होता था रिलीजियस शिक्षण का। इसलिए केव के अंदर में आपको मूर्तियाँ और पेंटिंग देखने को मिलता है। जैसे हम यहाँ पर एलोरा में हैं, सोलह नंबर की गुफा काफ़ी महत्व वाली है एलोरा में। तो देखिए इसको नाम दिया कैलाशा। कैलाशा का मतलब होता है अबोर्ड ऑफ शिवा, शिवा का रहने का स्थान। और ये टेंपल जो है शिव जी को समर्पित है, उनका घर बोला है। तो बीच में आप जो टेंपल देखेंगे शिवलिंग रखा है उधर में। तो कैलाशा नाम इसलिए पड़ा है कि जब पूरा कार्विंग ख़त्म होने के बाद में इसको पेंट किया था प्लास्टर से, वाइट प्लास्टर से, तो ये ऊपर से स्नो लगता था, इसलिए स्नो माउंटेन बोलकर कैलाशा माउंटेन इसको नाम दिया है। तो कृष्णा फर्स्ट जो किंग था, इसने डोनेशन दिया है, पैसा दिया है बनाने के लिए। तो इसको समय हिस्ट्री में अलग अलग बोला जाता है। अगर आप बाहर बोर्ड पढ़ेंगे उसमें 200 साल लिखा है, अलग अलग बुक में अलग अलग टाइम पीरियड है। कोई लोग इसको 150 साल बोला है, कोई लोग इसको 17 साल। तो इसका ऑथेंटिक है 17 साल। इसका जो टाइम पीरियड होता है 750 से लेके 773, टोटल 17 साल लगा है इसको कार्विंग करने के लिए। मगर जो डिज़ाइन लिया गया इस टेंपल का, ये साउथ इंडिया के फेमस टेंपल से लिया गया। पहला जो साउथ इंडिया का टेंपल है विरूपाक्ष टेंपल पट्टडकल जो कर्नाटका में, और दूसरा जो डिज़ाइन लिया गया है कैलाशनाथ टेंपल कांचीपुरम तमिलनाडु। तो दोनों को डिज़ाइन को मर्ज करके टेंपल को बनवाया गया। अभी ये जो टेंपल का जो वास्तुशास्त्र है या इसको आर्किटेक्चर जो बोला जाता है, तो हमारे इंडिया में दो फेमस आर्किटेक्चर है। एक नागरा आर्किटेक्चर जो नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है, जो गुप्त काल में उसका ओरिजिन हुआ था। जो दूसरा आर्किटेक्चर है द्रविड़ियन आर्किटेक्चर, जो पल्लवा ने शुरू किया था। तो कांचीपुरम वाली जो टेंपल है वो पल्लवा का है, और
तीसरा जो आर्किटेक्चर दोनों का कॉम्बिनेशन बना के बनाया है उसको बोलते हैं वेसरा। और वेसरा जो आर्किटेक्चर जो शुरू हुआ था ये हुआ था कर्नाटका में, इसलिए कर्नाटक आर्किटेक्चर बोला जाता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन करके चालुक्य ऑफ कल्याणी बदामी ने इन्होंने ये ओरिजिन किया था। तो आपको ये टेम्पल राष्ट्रकूटा और बदामी और होयसला अब्दार समुद्रा, तो इनके पास में ऐसे टेम्पल की छाप देखने को मिलती है। तो कुछ एलिमेंट नॉर्थ और साउथ के आपको समझ में आते हैं। तो देखिए साउथ इंडिया में जो टेम्पल का शेप बनाया जाता है ये होता है चैरियट का शेप। जैसे हम्पी आपने नाम सुना होगा कर्नाटका में, उसका जो शेप है वो चैरियट का है। ऐसे चेन्नई में एक टेम्पल है महाबलीपुरम टेम्पल, उसको चैरियट का बनाया है। इसी तरह से ईस्टर्न साइड में जो कोणार्क का टेम्पल है सन टेम्पल, उसको चैरियट का शेप दिया है। तो चैरियट शेप काफ़ी उस टाइम में फेमस होता था, इसलिए टेम्पल को चैरियट का शेप दिया है। तो चैरियट आप देखिए मेन टेम्पल जो दिखता है वो मेन चैरियट है, और चैरियट को होता है व्हील। तो यहाँ पर व्हील के बजाय यहाँ एनिमल बताए 150 एनिमल अपने पीठ के ऊपर में पूरे टेम्पल को बैलेंस करते हुए बताया। चैरियट का दूसरा पार्ट होता है ड्राइवर जहाँ बैठता है, ये नंदी मंडप है, इसी को ड्राइवर सीट कंसिडर किया है। और चैरियट को एक्सल होता है, ये सेंटर वाला पार्ट है एक्सल है, सामने वाला पार्ट है यॉक, जहाँ पर एनिमल को अटैच किया जाता है, जैसे बुल होगा, हार्स होगा, हाथी होगा, उसको चैरियट करने के लिए। और चैरियट में जो बैठेगा उसका फ्लैग स्टेप बाहर होता है, ध्वज स्तंभ, ये ध्वज स्तंभ पता है दोनों साइड में। तो ये टेम्पल 3 टाइम में पेंट हुआ था। 8वीं सदी में वाइट वाला प्लास्टर दिखता है, 9वीं सदी में आपको छत के ऊपर में पेंटिंग देखेंगे मिलेगा, और 18वीं सदी में यहाँ पर आपको पेंटिंग देखने को मिलेगा। तो 18वीं जो सदी का लेटेस्ट पेंटिंग है, जो इंदौर की रानी थी अहिल्याबाई होलकर, इन्होंने पैसा देकर इस टेम्पल को आखिरी बार पेंट किया था। और यहाँ पर जो रॉक कटिंग का इस्तेमाल किया है, तो अलग अलग टेक्निक सा इस्तेमाल होता है। जैसे आप देखिए जो पहाड़ है ये काफ़ी स्लोपी पहाड़ है, ये आसान होता है चढ़ाई करने के लिए। जैसे ये आर्टिस्ट लोग चढ़ाई किया है तो इसके सरफेस वाला पूरा जो भी पेड़ पौधा होता है उसको क्लीन किया, फ्लैट सरफेस होता है, और उसको लकड़ी से लकड़ी जलाया है। तो हीट सरफेस होने के बाद में इसे पानी डाला गया, पानी डालने की वजह से रॉक क्रैक हुआ है, इनको जगह मिली है पत्थर को निकालने के लिए। तो उस टाइम में पिकैक्स होता है, उससे पत्थर को निकाला गया है। तो ट्रेंच मेथड या रेक्टागोन शेप बनाया था। तो आप देखिए 2 पत्थर के बीच में जो वैली दिखता है, ऐसा ट्रेंच का लेंथ है 50 मीटर, और विडनेस है ट्रेंच का 30 मीटर, और हाइट है ट्रेंच का 33 मीटर। तो ऐसा ट्रेंच बनाकर रॉक को निकाला गया है। तो 5 टन रॉक, ये पूरा पत्थर निकाल कर, ये पत्थर जो इसको डिस्पोज किया है, नीचे आपने टेम्पल देखा वहाँ एक छोटी सी नदी बहती है, उस नदी में पत्थर को फेंक दिया है, और नदी ने हर जगह को पत्थर को लेकर चला गया। तो कहीं पे भी आपको डेब्रिस का एविडेंस नहीं मिलता है। तो इसी तरह से इन्होंने क्यूबिकल रॉक, इन्हें स्क्वायर वाला पत्थर ऐसा छोड़ा है, और स्केप फोल्डिंग होता है, मचान बनाकर ऊपर से नीचे इसको कट किया गया और सामने से पीछे कट किया गया। तो इसी तरह से ये टेम्पल बना है 17 साल में, और इसका महत्व ये बताया है कि ये पूरे दुनिया के अंदर में फेमस इसलिए कि ये एक ही पत्थर में काट के बना है, दुनिया का लार्जेस्ट मोनोलिथिक टेम्पल इन द वर्ल्ड। Welcome. Madam, from in which state? Hungary. 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 Welcome. এই দেওয়ালের
একদিকে ছোট ছোট ভাস্কর্যের সাহায্যে রামায়ণের কাহিনী ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, আর অপরদিকে মহাভারতের পৌরাণিক কাহিনী ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। तो इसी तरह से 20 रुपए के नोट के ऊपर में चित्र छापा है एडवर्टाइज करने के लिए। तो यहाँ पर रावणा बताया 10 हेड एडजस्ट किया है आर्टिस्ट ने, 20 हैंड्स है। और कैलाश माउंटेन को लिफ्ट करते हुए बताया, कैलाश माउंटेन दिख रहा है, कैलाश माउंटेन को लिफ्ट करते हुए बताया है। मूवमेंट होने के वजह से कुछ मूवमेंट आर्टिस्ट ने बताई है, जैसे 2 मंकी आपको दिख रहे हैं, ये सरप्राइज फेज है उनका, हमारे तरफ देख रहे हैं। एक अटेंडेंट थ्रोइंग स्टोन बोल्डर, और एक लेडी जो है भाग रही है, भागते हुए बताया ना, क्योंकि मूवमेंट हो रही है। और पार्वती जो है अपने हस्बैंड के शोल्डर को पकड़ा है, इधर गिर ना जाए, डर के गिर ना जाए। यहाँ पर पूरी कंट्रोल कर रहे हैं मूवमेंट। शिव जी अपना जो लेग का जो टो है उसको दबा रहे हैं, नीचे मूवमेंट को दबा रहे हैं, उनका टो कर्व हो गया है। और शिव जी पूछ रहे हैं ये अटेंडेंट से क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। ये एलोरा का महत्वपूर्ण स्कल्पचर है, डायनामिक स्कल्पचर है, आपको मूवमेंट उसमें बताइए। रावणा शेकिंग माउंट कैलाशा। पद्मनाभन कमल निकला है और कमल के ऊपर में ब्रह्मा बैठे हैं। ब्रह्मा, उनका स्टोरी बताया है। दूसरे है ऑपरेटर गॉड है विष्णु, और तीसरे डिस्ट्रॉयर गॉड है शिवा। इनकी मैथोलॉजिकल स्टोरीज बताए है। तो 2 गैलरीज आपको साइड में देखने को मिलेगी, वो शिव जी को समर्पित है, और एक गैलरी लॉर्ड विष्णु को समर्पित है। সোমবার অজন্তা বন্ধ এবং মঙ্গলবার এই ইলোরা কেভটা বন্ধ থাকে। সকাল 7টা থেকে 5:30 পর্যন্ত এই ইলোরা কেভ খোলা থাকে। ইলোরা কেভের নির্মাণকাল হলো 6 থেকে 8 সেঞ্চুরি, প্রায় 2000 বছরের পুরনো এই কৈলাস গুহা। অজন্তা এবং ইলোরার সঙ্গে তুলনা করলে অজন্তা হলো শুধুমাত্র পেইন্টিংস, আর এখানে স্কাল্পচার স্থাপত্যর জন্য বিখ্যাত। আর অজন্তায় শুধুমাত্র বুদ্ধিস্ট সমস্ত কিছু, জাতকের কাহিনী, বোধিসত্ত্ব এগুলো আছে। আর এখানে কিন্তু হিন্দু, জৈন আর বৌদ্ধ এই 3 ধর্মের সংমিশ্রণ আছে এই ইলোরাতে। আমরা এখন এই মুহূর্তে আছি 16 নম্বর কেভসে। এই 16 নম্বর কেভই হলো কৈলাস গুহা। এই কৈলাস গুহাটা বিশাল বড় একটা শিলা থেকে তৈরি করা হয়েছে। প্রাচীন ভারতে আমাদের শিল্পকলা কত না উন্নত ছিল, সারা বিশ্বে এই ভাস্কর্যের সঙ্গে কোনো তুলনা চলে না। ये 16 नंबर की गुफा काफ़ी महत्व वाली है एलोरा में। तो देखिए, इसको नाम दिया कैलाशा। कैलाशा का मतलब होता है अबोड ऑफ शिवा, शिवा का रहने का स्थान। और ये टेम्पल जो है शिव जी को समर्पित है।
আমরা এখন 16 নম্বর কেভের মধ্যে আছি। 16 নম্বর কেভে, এই কৈলাস কেভের মধ্যে একটা শিব মন্দির আছে। সেই শিব মন্দিরে আমরা ঢুকেছি। এখন আমরা শিব মন্দির দেখে বেরিয়ে এলাম। शिवलिंग रखा है उधर में। প্লিজ বলুন তো এখানে এই মূর্তির চোখটা কিসের চোখ? আপনারা কমেন্টস বক্সে লিখুন। আচ্ছা শুভজিৎ, বলো এই কৈলাস কেভে এসে তোমার কেমন লাগছে? খুবই ভালো লাগছে। আর ইন্দোরের রানী অহল্যাবাই হোলকার সমস্ত জায়গায় এখানেও রং করেছে, বিভিন্ন রকম সংস্কারের কাজ করেছে। হ্যাঁ তিনি তো খুব ভালো কাজ করেছে। হ্যাঁ, তাও তো ওপরের কয়েকটা স্টেপ যেতে পারছি না, আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া ওটা কাজ করছে, মানে ট্যুরিস্টদের অ্যালাউ করছে না, কিন্তু যতটুকু দেখেছি অসাধারণ। বাহ, আমাদের এই ইলোরা গুহা দেখা শেষ হয়ে গেল। এখন আমরা খেয়ে তারপর আমরা শিরিডির উদ্দেশ্যে রওনা দেব। শিরিডিতে প্রায় 5টার মধ্যে আমরা পৌঁছে ওখানে হোটেলে যাব। তারপর শিরিডি থেকে আমরা আশ্রমে যাব। শিরডি আশ্রমে আমরা দর্শন করে আসবো আজকেই। এখন আমরা এই ইলোরা কেভ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি। ইলোরা কেভ খুব সুন্দর, আপনাদের দেখালাম। আমাদের যে প্রাচীন যে ভারতীয় শিল্পকলা কত উন্নত ছিল, এটা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। আপনারা এখানে এলে ওয়াশরুমে যেতে হলে এই যে এখানে ওয়াশরুমের দিক নির্দেশ করা আছে। সামনে এই যে গেটের বাঁ দিকে আপনারা চলে আসবেন। এইদিকে ওয়াশরুম আছে। সাফ সুতরা हो रहा है 24 ঘন্টা। ওকে, থ্যাংক ইউ। এই যে ক্যান্টিন। আমার ইউটিউব দেখে যদি কিছুমাত্র আনন্দ পান তবে অবশ্যই একটি কমেন্টস করবেন এবং লাইক করবেন। বর্তমানে ইউটিউব অ্যালগোরিদম বলছে লাইক এবং কমেন্টসের উপর তারা ভিউজ বাড়াচ্ছে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এই বলে আমি আমার ভিডিও এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। পরের ভিডিওতে আবার দেখা হবে। নমস্কার।